Namaste. You are most welcome to your YouTube channel Analytica Ayurveda. And today is the Monday, and that is the 5th February 2024. When you are listening it, so the golden rule: open the book. All my dear PG scholars of the Rasashastra discipline or any other discipline having interest into the rules and regulations, please open the book. We have covered a journey of 6 months. Every Monday, 30 minutes, 40 minutes, 20 minutes on the Drug and Cosmetic Act 1940 and the Drug Rules 2020. Fine. We can say Drug Rules 1945 and the Cosmetic Rules 2020. Drug Rule is the 1945. This is just the slip of the tongue. That is the Drug Rules 1945. And the cosmetics are different. That is the Cosmetic Rules 2020. So when we are talking about this drug rules, let me clear sometimes something confusion. Yes, Cosmetic Rules 2020. Fine. So Drug Rules 1945 and Cosmetic Rules 2020, it has been separated into the two parts, and now today under the headings of the Drug Rules, Rule 169, I am going to cover the last one, and this is about the permanent excipients, and I mean permitted excipients. See, at the time of recording, I am just coming from the undergraduate class of the Monday, which is a practical class in fact, and today on the date of the recording, the Hingul Sodhan. So many questions raised by the UG scholars, I tried to answer them, and I emphasize the concept why this Mardan of the Adrak with the Hingul is resulting to the Hingul Sodhan. So whatever the slip of tongue is going on when I am talking to you on this way, the Rule 169, it is simply the overpressure. So now it is Drug Rules 1945, and we are talking about the permitted excipients, not the permanent excipients. Nothing is like the permanent excipients. Permitted excipients. We have covered 1, 2, 3, 4 and clauses, and now we are going to take the 5th. And the generalized just to summary is that whatever things has been permitted as a permitted excipients into the manufacturing of a pharmaceutical product in the IP, Indian Pharmacopoeia, as well as the Prevention of the Food Adulteration Act 1954 and permitted by the BIS, Bureau of Indian Standard Act 1986, all are permitted for the Ayurvedic dosage form. And if you see my last video on this title, on the Rule 169, I said a story, all these things are already in the market, but in the 2008 it was just legalized with all the sources, and then see, it's happened even today. सरकार को कोई भी जब कानून लाना होता है ना, उसके पहले वो माहौल बनाती है, फिर कानून ले आती है. So what I was talking to you, the editorials, the Sunday pictures in the Times of India or the Indian Express, all the publications started, and then be alert, something is going to be happened. It's true. So it was like that, the shelf-life period. It was published into the Pharma Times, it's the journal of the magazine of the Indian Pharmaceutical Association, and in the August or the September 2005, there was a write-up of all the authors are just Malikans of the Multani, Charak, etc., right?
and then shelf life was notified for the ASU drugs into the gazette. द सेम वे माहौल बनाया जाता है, फिर कानून ला दिया जाता है। तो अभी जैसे माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, कंट्री में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो इतना अच्छा माहौल बना हुआ है आयुर्वेद के लिए कि हर हर महादेव हो रहा है इस समय पूरा। जय श्री राम के साथ ही मतलब पूरा आयुर्वेद खुश है। मन की बात में कल जो 2024 का पहला एपिसोड आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर जब WHO ICD की बात कर दी तो आयुर्वेद की खुशी का ठिकाना नहीं है। हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हुए और हम सभी लोग हैप्पी फील कर रहे हैं। एंड रियली दिस प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग फेथ इन द आयुर्वेदा एंड सो फॉर ही इज वर्किंग एंड ही इज गाइडिंग आयुर्वेदा लाइक एनीथिंग, न भूतो न भविष्यति। और सबसे बड़ा ये जो कॉम्बो बन गया है ना माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे सचिव साहब का, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी का, दिस इज़ रियली वेरी इफेक्टिव। वी आर प्राउड ऑफ ऑल दैट। चलिए अब आगे बात करते हैं, 5वें पर आते हैं। ये कहते हैं मैन्युफैक्चरर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर rationality, safety and quantity used of various excipients in the formulations। जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके का, उसका रेशनैलिटी क्या है उस एक्सिपिएंट्स को मिलाने का, उसकी सुरक्षा क्या है और क्वांटिटी कितनी होगी, सारी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की होगी। हम सरकार मतलब कि हम सरकार यानी कि गवर्नमेंट इज जस्ट परमिटिंग यू कि आप ये मिला सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर आप ये मिला सकते हैं, कलरिंग एजेंट आप इसको मिला सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आप इसको मिला सकते हैं। कितना मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे, रेशनैलिटी। अब इसके लिए एक अलग से वीडियो की ज़रूरत है और आप कहेंगे तो ज़रूर बनाएंगे विथ एग्जांपल्स, खूब सर्च करके कि सेप्टिलीन में कौन से एक्सिपिएंट्स हैं, अस्थिपोषक में कौन से एक्सिपिएंट्स हैं, या और चलते हैं तो लिवोमीन में कौन से एक्सिपिएंट्स हैं, एडिजोआ में कौन से एक्सिपिएंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को विथ एग्जाम्पल सर्च करके, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम तो यहाँ डिस्कस करते हैं अपने स्कॉलर्स के साथ, लेकिन अब आप लोगों के साथ थोड़ा ये है कि टू द पॉइंट और 20-25 मिनट में ही मुझे बहुत सारे सजेशंस यही आते हैं कि नहीं वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल समय की सीमा है तो हम उसी में रह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेशनैलिटी, क्यों मिलाया जाए, सेफ्टी एंड क्वांटिटी यूज इनटू द फॉर्मुलेशन। Next, 6th, if any excipients or additive or preservative, ये बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। If any excipients or additive or preservative etc. referred in Indian Pharmacopoeia or the Prevention of Food Adulteration Act 1954, Food Product Order, Bureau of Indian Standard Act 1986 is deleted at a particular point of time, this will also be deleted simultaneously for the use in Ayurveda, Siddha, Unani drugs। बहुत सेफ चली गवर्नमेंट। सिंपल कि अगर कोई भी एक्सिपिएंट्स और एडिटिव वहाँ से IP से डिलीट होता है या फूड प्रोडक्ट ऑर्डर BIS से डिलीट होता है या फूड एंड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट से डिलीट होता है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली वो डिलीट माना जाएगा। ये नहीं कि नहीं अभी आप नोटिफाई करिए रूल 169 में और इसको नोटिफाई करिए तभी हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए सरकार ऐसे चलती है। लीगल वेटिंग जब होती है किसी भी कानून के लिए, किसी भी बात के लिए, तो लीगल वेटिंग कराई जाती है। लीगल वेटिंग में बैठे हुए लोग ला के मास्टर होते हैं और वो लोग इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो यही बात यहाँ पर ये आ रही है कि जिस दिन वो IP में ख़त्म होगा, आयुर्वेद में भी अपने आप उसका यूज़ बैन हो जाएगा। नेक्स्ट,
दैट इज़ द सेवन्थ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक लाइन एक्ट की इंपॉर्टेंट होती है। फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एज पर मैक्सिमम लिमिट इंडिकेटेड बिलो मे बी यूज्ड इन वेरियस डोजेस फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। हाँ, ये देखिए, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ओनली फॉर द प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, ठीक है ना। ये सेक्शन 3A में नहीं परमिट हो रही है, खाली सेक्शन 3H में परमिट हो रही है। और क्या कहते हैं ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मे बी यूज्ड ओनली इन द प्रोप्राइटरी ASU प्रोडक्ट एंड द लेबल ऑफ सच प्रोडक्ट शुड कैरी ए स्टेचुरी वार्निंग स्टेटिंग दैट नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस का जो एक स्पेशल इशू आता है संडे को, 4 पेज का, बहुत ही शानदार, पढ़ा करिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज हो जाएगी। आई, उसका नाम ही है आई, EYE। आई में जो 4th पेज होता है ना, डियर सर एंड मैडम, आई का 4th पेज हेल्थ रिलेटेड होता है और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। यू जस्ट गेट इट। आप हर संडे को, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ और मैं अपने प्लान भी कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ यहाँ पर एसोसिएटेड PG PhD स्कॉलर्स हैं उनको मैं थोड़ा एक इस तरीके का होमवर्क दूँ। मैं पहले दिया करता था, अभी बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया था मेरी अपनी इल हेल्थ से, लेकिन जब मैं अगर गेन कर रहा हूँ तो मुझे फिर से अपने उसी फॉर्म पे आना है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि हमारे भी PG PhD स्कॉलर्स अभी थोड़े से रिलैक्स हैं, लेकिन मैं रूटीन में उनको ले आ रहा हूँ जिससे कि वो उनका एक एक मिनट उपयोग हो। तो ये आप जान लीजिए कि आप अगर इंडियन एक्सप्रेस के संडे इशू के आईज के 4th पेज पे ही एक डिस्कशन करते हैं बैठ करके अपने डिपार्टमेंट में, PG स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स, यू विल गेट मैनी थिंग्स, certainly you will get many things, very inspiring stories are there, inspiring real stories कि कैसे कोई एक डिजीज़ से कोप अप किया, वो भी होता है। और फंडामेंटल्स तो कुछ अच्छे ही आते हैं। उसी तरीके से हेल्थ कॉलम में भी आता है। ऐसा नहीं है कि खाली रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर जो कि वो छप रहे हैं ना, कहाँ पे, एल्सवेयर में, स्प्रिंगर में, फ्रंटरीज में और JIM में, IU में, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये कुछ कॉमन वाले भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉमन वाले ही कॉमन लोगों तक जाते हैं, राइट। अभी हम बातों पर बातें आती हैं। अभी हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी में, बहुत ख्याति प्राप्त प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर VN मिश्रा नाम है। तो उनको मातृशोक हुआ तो उनके यहाँ हम लोग गए थे। तो एक प्रोफेसर हैं जूलॉजी में यहाँ पर, ज्ञानेश्वर चौबे, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, और साथ में बाई द वे कोइंसिडेंस हम दोनों लोग एक साथ थे। और उनके यहाँ जो भी लोग मिलने हुए आए थे, आप सोचेंगे कि क्या है, तो जो बनारस का बहुत फेमस संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम कर लिया जाए। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर के वो महंत भी हैं प्रोफेसर VN मिश्रा जी। तो पब्लिक बनारस की एक हस्ती हैं, पब्लिक उनके यहाँ बहुत आती है। तो जब वो हम लोगों का परिचय कराया प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का और मेरा, कि ये दोनों लोग बनारस यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, वहाँ करीबन 20-25 लोग थे। उसमें से 10 लोगों ने रिस्पांस किया, अरे हम लोग जानते हैं, इन लोगों का आर्टिकल पढ़ते हैं, इन लोगों का राइटअप पढ़ते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक ओपिनियन में और उनकी जो सरल भाषा में जो चीज़ें लिखी जाती हैं ना, बहुत काम की होती हैं और वो बहुत कॉमन मास तक प्रोपोगेट होती हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर आई में इंडियन एक्सप्रेस के बहुत अच्छा राइटअप आया था और इस पर बड़ी ड्यूअलिटी चल रही है, इसीलिए इस पर अलर्ट और इस पर ये बातें जी रही हैं कि स्टेचुरी वार्निंग देनी है। जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिख रहा था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पान जर्दा के मसाले पर लिखा होता है कि पान जर्दा खाना कैंसरजेनिक है। वैसे ही यहाँ पर भी लिखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर किसी डोजेस फॉर्म में लगाया जा रहा है प्रॉपर्टी एंड पेटेंट में, तो वो लिखना होगा। तो मुझे इसलिए याद आ गया, अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की आपके लिए तब नहीं याद था, अभी बोलते बोलते याद आया कि आई में लिखा हुआ है कि इतने एविडेंसेस छुपाए जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर इज इन द रियल सेंस कार्सिनोजेनिक। बट लॉबी है भाई, लॉबी है, प्रोपोगेट करती है, अपोनेंट करती है, मैन्युफैक्चरर्स लॉबी, कॉर्पोरेट लॉबी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर के बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक ग्रुप एविडेंस के साथ कह रहा है
कि नहीं ये कार्सिनोजेनिक का, और एक ग्रुप कह रहा है नहीं 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 कोई असर नहीं होता, खाओ पियो मस्त रहो। किसको मानेंगे आप, ये आपका विवेक है, लेकिन मेरा विवेक तो ये कहता है कि आपको ये सजेस्ट करूं कि अगर कहीं पर शंका लग गई है तो छोड़ दो। तो क्योंकि वो जो ग्रुप कह रहा है कि नहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कार्सिनोजेनिक हैं, तो कुछ तो होगा ही ना। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, हम लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, प्रमाण में पढ़ते हैं ना। तो ऐसे नहीं होता, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेना ही क्यों, बंद करिए। देख लीजिए सेक्शन 3H में, जितने भी प्रोप्राइटरी ड्रग्स हैं उनमें अगर किसी में आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया गया हो और उसके लेबल पर लिखना ज़रूरी है, मत लीजिए उसको, छोड़ दीजिए, है ना। ठीक है, फिर भी ये क्या अलाउ कर रहे हैं, देखिए ये क्या कहते हैं, द रिकमेंडेड ADI acceptable daily intake acceptable daily intake of these sweeteners as laid down by US FDA is as follows. US FDA serial number 1 sucralose 5 mg per kg body weight, aspartame 40 mg per kg body weight, saccharin 5 mg per kg body weight, on Aselfam K 15 mg per kg body weight. 1/3 of the above ADI would be permitted for use in Ayurveda Siddha Unani proprietary drugs. इसमें भी जो 5 mg है उसका 1/3, 40 mg है एस्पर्टम का उसका 1/3, जो सैकरीन है 5 mg per kg body weight उसका 1/3। क्यों मिलाना, ठीक है ना, नहीं लेना चाहिए। चलिए 8th पर लास्ट, और लास्ट ये आता है कि एनी प्रीवियस नोटिफिकेशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष रिगार्डिंग यूज ऑफ एक्सिपिएंट्स एडिटिव और प्रिजर्वेटिव्स इन आयुर्वेदा सिद्धानी एंड यूनानी मेडिसिन स्टैंड सस्पेंडेड। लास्ट यानी कि 2008 के पहले जितने भी कानून आए हैं, जितने भी निर्देश इस संदर्भ में आए हैं कि आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स में कौन से प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे, कौन से एडिटिव्स मिलाए जाएंगे या कौन से एक्सिपिएंट्स मिलाए जाएंगे, सारे सस्पेंड। क्योंकि इन्होंने मूल मंत्र पकड़ लिया, किसको, आईपी को पकड़ लिया, आईपी को पकड़ लिया, और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर BIS को पकड़ लिया, फूड एंड प्रिवेंशन एक्ट 1954 को पकड़ लिया। और इसलिए अब उसी के साथ चलिए, हमने अभी जो भी आपने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को पकड़ लिया। और मुझे आज थोड़ा संतोष हो रहा है कि आज एक हरक्यूलियन टास्क यानी कि डिजिटल वे में पूरा हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो ASU से रिलेटेड है और ड्रग रूल्स 1945 जो ASU से रिलेटेड है, उसकी वीडियो का कंप्लीट हुआ। और रूल 170 तो स्थापित है, अभिशापित है, उसके में जो भी आता है उसके ऊपर अबियंस लग जाता है, वो कैप्टन अबियंस या कैंसिल हो जाता है। रूल 170 GCPI गताल खाते में गई। आज थोड़ा देखना मेरी लैंग्वेज बिल्कुल जॉली वाली हो रही है, वो रुक गई, गताल खाते में नहीं लागू हुई। फिर 170 आया, दिसंबर 18 में दोबारा आया 170, वो शेड्यूल जेड में आया था 170 गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एबियंस। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रूल 170 एबियंस, हाई कोर्ट इसमें खड़े हो गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो भी निरस्त। तो 170 अभी खाली है, दो बार नोटिफाई हो चुका, नॉट एडवर्टाइज, नोटिफाई हो चुका, लेकिन हर बार उसको वापस लेना पड़ता है। एक तो शेड्यूल जेड में आया था, वो भी वापस हुआ। तो रूल 170 शायद ऐसा हो गया है जैसे कभी कभी एरोप्लेन्स में सीट नंबर 13 नहीं होती है, किसी किसी होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता है, तो वही हाल हो गया है रूल 170 का। इस पर जो भी नोटिफाई किया जाता है उसको सरकार को वापस लेना पड़ता है। फिर भी आपने धैर्य के साथ सुना, और हम अपने प्रोड्यूसर्स का भी धन्यवाद करते हैं। उसमें मेनली हमारी रिसर्च स्कॉलर अपर्णा सिंह जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज हैं, और आज तो उनको कुछ अच्छा लगा होगा। वैसे तो आयुर्वेद पूरा सुन ही लिए हैं, लेकिन हाँ अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी अच्छे। और प्रीति टमटा जो MD आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं, इन दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की पूरा वीडियो शूट करने में किसी भी समय। तो आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक
एक्ट 1940 ड्रग रूल्स 1945 का ये पूरा हुआ। अब मैं पहले भी जैसे मैंने कहा था कि शेड्यूल्स पर हम तभी बात करेंगे जब आपकी तरफ से कुछ सजेशंस आएंगे, नहीं तो हम इसमें अब मंडेज में लेने जा रहे हैं जो गज़ट आया है NCSM के, और वो भी 28 दिसंबर वाला गज़ट, ठीक है। उसको जब पूरा कर लेंगे, उसमें भी 3 महीना तो लग ही जाएगा ना मंडे करते हुए। तो उसके बाद मेरी इच्छा हो रही है कि फूड एंड FSSAI को लेंगे या CPA लेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेंगे। तो जो आप कहेंगे हाजिर, जो सिलेबस में है आपके सिलेबस में CPA भी है, आपके सिलेबस में FSSAI भी है, तो एज पर सिलेबस नेक्स्ट टाइटल पर चलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, आपके संदेशों का इंतज़ार, धन्यवाद।